Hi guys, welcome back to the YouTube channel of IMS Uttar Pradesh. So let's start with set number 11 of this particular playlist. First, pause the video, try it on your own, and then proceed with the video solution. So this particular set is a DI based set which I've taken from previous year paper, and the set says a university evaluates student for a merit scholarship based on three assessment components: academic performance A, leadership skills L, and community service C. Each component is scored on an integer scale from 0 to 40. A student scholarship score SS is the sum of the score in three components. Based on the scholarship score, students are classified into three different categories according to the following table. Total score दिया हुआ 0 से 20, below average है 21 से 40, average है 41 से 65, above average है 66 से 95, good है and 95 से 120 वालों को इन्होंने categorize करा excellent. ठीक है. अच्छा. The following chart shows the frequency distribution of the scores obtained in academic performance A, leadership skills L, and community service C by 10 students: Arav, Bhavya, Charvi, Dev, Isha, Farhan, Gauri, Harsh, Ishita, and Zoya. Further, the following information is known. Arav and Charvi jointly have the lowest scholarship score of 35, and they have identical score in all three assessment components. Zoya has a total scholarship score of 85. All three students who are categorized as good have the highest score in exactly one component. Questions पढ़ लेता हूँ. What is RF's score in leadership skill? What is Zoya's scores in academic performance? If Bharat, Bhavya, and Dev, two students are categorized as good and have the same total scholarship score, what is the maximum scholarship score they can have? ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 से तो मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन पूरा अपने को शायद ना मिले. क्वेश्चन नंबर 4 is also again with if Bhavya's scholarship score is 80 and Dave's scholarship score is 75, then what is the maximum number of students who can have a scholarship score of 65? Okay. Now, what is given in the set? There are 10 students who are going for a scholarship test and they will be evaluated on three different components, which is A, L, and C, and they will be rated 0 से 40 के बीच में और उनका स्कोर दिया हुआ है यहाँ पे अपने को बार ग्राफ के फॉर्म पे. ओवरऑल स्कोर के बेसिस पे दे आर कैटेगराइज. उनकी कैटेगरी बिलो एवरेज हो जाती है, एवरेज हो जाती है, अबव एवरेज हो जाती है, गुड हो जाती है, एक्सीलेंट हो जाती है. अब ये जो डीआई का टेबल दिया हुआ है बारग्राफ वाला, वो कैसे डिपेक्ट करें? ये दिखाता है कि फ्रीक्वेंसी कितनी है. मतलब येलो वाले यानी कि एल कंपोनेंट पे 5 स्कोर करने वाले 2 लोग हैं. ब्लू कंपोनेंट यानी कि सी स्कोर करने वाले 1 लोग हैं. तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ए पे, ए यानी कि ग्रीन. तो 3 लोग ऐसे हैं हु हैव स्कोर्ड 15. ठीक. 3 ऐसे हु हैव स्कोर्ड 20. 2 ऐसे हैं हु हैव स्कोर्ड 25. एक 30 एंड एक 35. ठीक है. सिमिलरली आई कैन नोट फॉर एल ऑल्सो. एल का क्या है? येलो वाले 5, 10 1, 15 वाले 2, 20 वाला 1, 25 वाले 3, 35 वाला 1. ऐसे ही सी के लिए नोट कर सकते हैं. सी यानी कि ब्लू वाले इंडिकेट 5 1, 10 वाले 3, 15 वाले 4, 20 वाला 1, 30 वाला 1. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है, परफेक्ट. मैंने सबका 10 कंपोनेंट का मतलब तीनों कंपोनेंट का 10 पॉसिबल स्कोर लिख दिया. ठीक है. अब यहाँ पे बेस्ट चीज क्या मैं सोच पाता हूँ? मैं सोच पाता हूँ एक टेबल. मतलब तुमने नोटिस करा होगा मैं हर चीज को एक टेबल में करने का सोचता हूँ, क्योंकि लॉजिकल डीआई है थोड़ा, तो उसके अंदर नंबर डिस्ट्रीब्यूट करना अपने को साफ साफ दिख रहा है. ठीक है. अब क्या करेंगे? एक टेबल ऐसा सोच लिया मैंने जिसमें कि मेरे को पता है कि यार इनका जो टोटल स्कॉलरशिप स्कोर है वो लिखूंगा और एएलसी का नंबर से जोड़ूंगा. लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट नंबर 1 व्हिच सेज आरव एंड चार्वी जॉइंटली हैव अ लोवेस्ट स्कॉलरशिप स्कोर ऑफ 35. सबसे कम 35 है, 35 से कम किसी का नहीं है. ठीक है. जोया हैज अ टोटल स्कॉलरशिप स्कोर ऑफ 85. ठीक. ऑल थ्री स्टूडेंट हु आर कैटेगराइज्ड एज गुड, ये वाले, have the highest score in exactly one component.
3 लोग ऐसे हैं जिनको कैटेगराइज़ करा गया गुड, उनमें से एक तो ज़ोया है। उन तीनों का अलग-अलग कंपोनेंट में हाईएस्ट है। मतलब कोई एक बच्चा जिसका ए कंपोनेंट में हाईएस्ट है, किसी का एल कंपोनेंट में हाईएस्ट है, किसी का सी कंपोनेंट में हाईएस्ट है। तो ए कंपोनेंट में हाईएस्ट 35, एल कंपोनेंट में हाईएस्ट 35, सी कंपोनेंट में हाईएस्ट 30। तो वो 3 अलग-अलग बच्चे, ठीक है? अब यार यहाँ पे ना थोड़ा-सा सीखना, सीखने वाला चीज़ ये है कि मतलब ऐसे सेट को अप्रोच करने का एक तरीका है कि यार मैं सारे हिडन ट्रायल से केसेस बनाऊँ, जो कि बहुत सुसाइडल प्लान है क्योंकि वो मेरा 20 से 25 मिनट खा जाएगा और शायद मेरे को 1 या 2 क्वेश्चन में। दूसरा तरीका है सीधे जंप टू द क्वेश्चन, सी व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड और उधर से दिमाग लगाना शुरू करो। मतलब जैसे यहाँ पे पूछा व्हाट इज़ आरव स्कोर इन लीडरशिप स्कोर? मतलब आरव का ये निकालना है, ठीक है? आरव का जो स्कोर होगा वही सी का भी स्कोर होगा, 4वीं का, ठीक? और वो स्कोर कितना 35 और 35 और दोनों का स्कोर आइडेंटिकल है तीनों कंपोनेंट में, ठीक है? आरव का स्कोर 35 कैसे बना होगा? 15 से तो 4वीं का भी 15 से बना होगा, व्हिच इज़ पॉसिबल। यानी कि पीछे 20 का जैसा और बनाना होगा, 20 कैसे बनेगा? 5, 5, 15, 15 से बन सकता है? बन सकता है। तो 5, 5, 15, 15 से बना सकते हैं। अच्छा, 20, 10, 10 नहीं 10 तो एक ही है। 15, 15, 5, 5 नहीं 5 भी एक ही है। तो मतलब 15 वाले कॉम्बिनेशन से एक तो ये कॉम्बिनेशन बन सकता था। इसके अलावा क्या बन सकता है? 20, 20 से बना सकते हैं क्या? 20, 20 से बना सकते हैं। 20 का मतलब पीछे 15 और बनाना बचा व्हिच इज़ 5, 5, 10, 10 हाँ, ये बन सकता है। 15 और कैसे बन सकता है? 10 से बन सकता है? नहीं, क्योंकि 10 के साथ एक ही 10 है। 15 से बन सकता है, 15, 15 2 है लेकिन 2 ज़ीरो यहाँ पे नहीं है। तो मतलब ए और सी का जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो कैसा हो सकता था? 15, 5, 15, 25 और 10। अब दोनों में ऑब्ज़र्व करने वाली चीज़ क्या है? 5 यूनिक स्कोर आपको यहाँ पे मिलना है। यानी कि अगर मैं इनका स्कोर यहाँ पे नोट डाउन करूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा? 15, 5 अ, 15, 25 और 10 सेम चीज़ यहाँ मिलेगी 15 और 20 में से कुछ एक 5 और 15 के साथ 15 और 10 में से कुछ एक। ये मेरे पॉसिबल स्कोर ए और सी के बन सकते हैं। यानी कि पहले का आंसर क्या होना चाहिए था? क्योंकि मेरे को आरव का ही पूछा हुआ तो पहले का आंसर क्या होना चाहिए था? 5। पॉइंट समझ आया हमने कैसे जुगाड़ से निकाला? तो आइडिया वाज़ कि मेरे को क्वेश्चन पढ़ के निकालना था। ऐसा अगर मैं फँसता तो रह ही जाता। ठीक है? अब मेरे को क्या करना है? चलते हैं। क्योंकि आई हैव आइडेंटिफाइड ऑलरेडी 5 एंड 5 एक काम करते हैं, हमें ये 2 बंदे मिल चुके हैं। तो मैं 5 और 5 को हाइलाइट कर लेता हूँ, ठीक है? अच्छा, अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा हुआ है वो देखते हैं। बिकॉज़ क्वेश्चन से चलेंगे तो ज़्यादा आसान है, ठीक? साथ-साथ में अपन जगह भी बनाते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि बताओ ज़ोया का एकेडमिक परफॉर्मेंस में क्या स्कोर होगा? ज़ोया कौन है? ऐसी पर्सन जिसका 85 स्कोर आया है। 85 कैसे पाई होगी वो? ये सोचते हैं। 85 यानी कि वो गुड कैटेगरी में आती है, ठीक है? यानी कि या तो उसका 35 आया होगा इसमें, या तो यहाँ पे 35 आया होगा, या तो यहाँ पे उसका 30 आया होगा। ठीक, ऐसा ही होगा ना? क्योंकि वो गुड कैटेगरी में तो उसने किसी एक कंपोनेंट में हाईएस्ट स्कोर करा हो, किसी एक में। अच्छा, 35 पीछे कितना बच गया 50 और बनाना। 35 के बाद 50 बनाने का मतलब 25 नहीं, 35 और 15 से बना सकते थे 50 लेकिन 35 और 35 रिपीट हो जाता। 20 और 30 से बना सकते थे 50 लेकिन अगेन वो 20 और 30 में ये दोनों रिपीट हो जाता है यानी कि ये तो मेरा पॉसिबल केस नहीं है। ठीक। अच्छा 35 में फिर से मेरे को बनाना क्या है 50 बनाना है। 50 कैसा बनाएंगे? अगर यहाँ पे 35 है तो आई कैन थिंक ऑफ 30 एंड 20 हाँ, ये बन सकता है तो आई कैन थिंक ऑफ 30 एंड 20 अच्छा, कैन आई थिंक ऑफ समथिंग एल्स 30 एंड 20 के अलावा मेबी ऐसा 25 के साथ 30 के साथ जोड़ सकते थे? हाँ, जोड़ सकते थे। यार प्रॉब्लम क्या है ना 25 और 30 लूँगा तो यार फिर वही 35 और 30 ये दोनों टॉपर्स बन जाएँगे व्हिच इज़ नॉट पॉसिबल। तो मेरे को एक केस तो ये मिल गया, ठीक है? जब मेरा ये वाले पे इसने टॉप करा होगा। अच्छा जब यहाँ टॉप करा होगा तो यानी कि मेरे को कितना बनाना बचा है 55 और बनाना बचा है। 55 कैसे आ सकता है? 30 और 25 से आ सकता है? बिल्कुल, 30 और 25 से आ सकता है।
25 नहीं, 20 और 35 नहीं, क्योंकि यहाँ पे फिर से वही लॉजिक, 20 और 35 लूँगा तो 35 एंड 30 ये दोनों टॉपर बन जाएँगे। तो यहाँ पे ये मेरा केस बन गया। यानी कि अगेन व्हाट आई कैन ऑब्जर्व कि भाई यहाँ पे इस बंदे का 30 और 30 आ रहा है। यानी कि ए का यहाँ पे कितना है? सॉरी, ज़ोया का ए वाले कंपोनेंट में 30 आएगा, इधर कितना आएगा? 35 और 20 या 25 और 30, ठीक है? सो कितना आ गया? 30, 35, 65 एंड 85 और ये आ गया आपका कितना? 30, 25 इज़ 55 एंड 85, ठीक। सो ये 2 चीज़ अपन सोच पा रहे थे। अब देखो यहाँ पे अपने को कितना ईज़िली ज़ोया का भी स्कोर मिल गया व्हिच इज़ 30, ठीक। नाउ लेट्स जंप टू द क्वेश्चन नंबर 3। अब यार देखो, अगर मैं ना क्वेश्चन बाय क्वेश्चन ही जाऊँगा तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मैं अभी तक नंबर ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ और शायद 10 मिनट बाद ये रियलाइज़ करता है कि यार ये तो बन नहीं रहा, चलो क्वेश्चन पे ट्राई मारते हैं। टाइम मत वेस्ट करो, थोड़ा स्मार्ट हो जाओ, ठीक है? देखो डीएलआर के अंदर स्कोर करना है तो ये सब चीज़ें आपको डेवलप करनी पड़ेगी, ठीक? क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। भव्या एंड देव आर 2 स्टूडेंट हू आर कैटेगराइज्ड एज़ गुड। यानी कि जेड के अलावा ये दोनों गुड कैटेगरी में चले गए एंड हैव अ सेम टोटल स्कॉलरशिप स्कोर। व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्कॉलरशिप स्कोर दे कैन हैव? अच्छा, ठीक है। अब एक केस अपने को पता है कि जो ये जेड है, इसका या तो 35 में इसने टॉप किया होगा, ठीक है? और 20 बना होगा, यानी कि ये बन गया 80। या अगर एक और केस बनाना चाहूँ तो ऐसा हो सकता था, यहाँ पे नोट कर लेता हूँ कि 30, 25 एंड 30, ठीक है? यानी कि अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इसने हाईएस्ट स्कोर करा है, यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर करा है। यानी कि 2 लोग जो बचे हुए हैं उनमें से एक होगा जो इसने यहाँ पे हाईएस्ट करा होगा व्हिच वुड हैव बीन 35 और दूसरा होगा जिसने यहाँ पे स्कोर करा होगा 30। सिमिलरली यहाँ पे देयर हैव बीन, मतलब ऐसा होगा 30 वाला एक बंदा होगा और एक पर्सन होगा जो कि यहाँ पे स्कोर कर रहा होगा 35 वाला ये वाला। ये 2 केसेस बन सकते थे, केस नंबर 1 ले लेता हूँ ये, केस नंबर 2 ले लेता हूँ ये, ठीक है? ऐसा। अब अपने को दोनों का सेम स्कोर बनाना है, वो कौन है नहीं पता, अपने को टोटल स्कोर से मतलब है, ठीक है? पॉइंट समझ आया ना? क्योंकि अपने को क्या पता है, वो जो तीनों गुड कैटेगरी वाले हैं, उनका तीनों अलग-अलग सब्जेक्ट में हाईएस्ट बनता है। तो 1, 2, 3, 1, 2, 3, ठीक है? अब मेरे को क्वेश्चन एग्ज़ैक्टली क्या पूछा हुआ है, वो दिमाग लगाते हैं। क्वेश्चन बोला हुआ है कि अगर ऐसा होता है, देन व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्कॉलरशिप स्कोर दे कैन हैव? मैक्सिमम स्कॉलरशिप स्कोर। क्या 85 हो सकता है? ऑप्शंस ही चलते हैं। 85 का मतलब इसको 50 बनाना पड़ा उसे, है ना? 50 मतलब 25 और 25 बना सकता हूँ? बना सकता हूँ। यहाँ पे भी 50 बनाना होगा। 35 मतलब 25 और 25, अरे नहीं देखो यार, ये तो नहीं बन पाएगा। अच्छा, 20 और 30 भी नहीं बना पाऊँगा बिकॉज़ 30 इज़ ऑलरेडी गॉन। तो यानी कि 85 तो मेरे को यहीं से मिल गया। मैंने अभी वहाँ तो चेक भी नहीं करा। ठीक पॉइंट समझ आया ना? तो 85 का मेरे को जब यहाँ पे बनाना था तो मेरे को 50 जैसा और बनाना था, तभी 85 बनता। 50 बनाने के लिए कैसे बन सकता था? या तो ये 30 और 20 बनाता, ठीक है? अच्छा, एक बन सकता अपना, ओके। ये वो यहाँ से मेरे को भी दिखा। चेक कर लेते हैं। 35 का मतलब था यहाँ पे 30 और 20 बना सकता था, ठीक है? लेकिन अब देखो पंगा है, देखो मैंने यहाँ पे एक गलती करी। क्या गलती करी? ये 30 मेरा ऑलरेडी जा चुका है यहाँ पे, ठीक है? ये ध्यान देना, ये 30 ऑलरेडी जा चुका है। आई कैन नॉट कंसिडर दिस एज़ अ केस, तो ये भी नहीं बन पाएगा, ठीक है? अब ये वाली चीज़ ना एग्ज़ाम वाले फ़ेज़ में कई बार आप लोग गलती करते हो। इनफैक्ट मैंने देखो अभी तुम्हारे सामने ये चीज़ करा था। वो तो क्योंकि मेरे को क्लिक कर गया बिकॉज़ मेरे को दिखा कि यार ये वाला कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिख गया। अगर मेरे को यहाँ नहीं दिखता तो मतलब मैं शायद 10 मिनट के बाद मेरे को दिखाई देता, तो मैं फँसता, ठीक है? तो ये चीज़ पे ध्यान देना है ना। अच्छा फिर से चेक कर लेते हैं। 50 बनाने के लिए 25 और 25 नहीं ले पाऊँगा। 20 और 30 नहीं ले पाऊँगा। तो यानी कि 85 इज़ नॉट पॉसिबल। अच्छा, लेट्स थिंक ऑफ 80।
80 बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? 80 बनाने के लिए आई नीड टू हैव 35 में से 80 बनाना मतलब 45 और 45 बनाना पड़ेगा, ठीक है? केस नंबर 1 पे भी और ऐसे ही अपने को इधर चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे 45 और 50 बनाना पड़ेगा, ठीक है? पहले केस नंबर 1 पे चेक करते हैं। केस नंबर 1 में 45 का मतलब यहाँ पे मेरे को 25 और 20 लेना पड़ेगा, ठीक है? 25 और 20 दोनों अवेलेबल है? बिल्कुल है। तो आई कैन टेक 25 और 20, ठीक है ना? तो यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 2 25 भी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे 45 बनाने का मतलब यहाँ पे मेरे को फिर से वही लेना पड़ेगा, 25 और 20 या 20 और 25 नहीं, 30 नहीं, कोई और केस नहीं ले सकता। अब देखो यार यहाँ पे गड़बड़ी हो गई है, गड़बड़ी ये हो गई है कि ये देखो, ये प्रॉब्लम। मतलब ये तो पॉसिबल स्कोर लेके चल रहा हूँ ना, एक तो ये बंदा मिल गया था, मतलब एक ये मिल गई थी, ज़ोया मिल गई थी, जिसका मेरा गुड कैटेगरी में था। ये 2 लोग मिल गए थे, 2 गुड कैटेगरी वाले। अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है, दोनों का 20 आ रहा है, व्हिच इज़ नॉट पॉसिबल। 20 किसी एक का ही आ सकता है। तो मतलब 80 इज़ आल्सो नॉट फिज़िबल, ठीक? अच्छा, अब ये देखो ये मेरा यहाँ पे यार कह सकते हो कि मेरा किस्मत अच्छा था कि मेरे को पहले वाले केस में मिल गया। अगर ये नहीं मिलता तो आई वुड हैव चेक्ड आउट केस नंबर 2 आल्सो। ऐसा नहीं है कि बस केस नंबर 1 पे सब मिल गया तो सही है, ठीक है? ये गलती नहीं करना ना। ये था मेरा कितना 35। अच्छा, अगर 75 पे दिमाग लगाना है, 75 का मतलब 40 बनाना पड़ेगा, ठीक है? केस नंबर 1 पे ही चेक कर लेते हैं पहले। 40 मतलब अ, 35 के बाद 25 एंड 15 बना सकता हूँ, 20 एंड 20 बना सकता हूँ, दोनों पॉसिबल है। अच्छा, नीचे वाले से पहले ट्राई कर लेता हूँ बिकॉज़ कॉम्बिनेशन सारे देख के चलना है। इधर 40 बनाने का मतलब अपने को 25 एंड 15 ही बनाना पड़ेगा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यानी कि आई कैन हैव 25 और 15, ठीक है? सही ना? ये देखो यहाँ पे अगर मैंने 35 ले लिया था, तो यहाँ से मैं बना सकता था 25 एंड 15 एंड यहाँ पे मैं बना सकता था 20 एंड 20। सॉरी, सॉरी उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया। यहाँ पे मेरे को 20 एंड 20 बनाना था, ठीक है? देखना, यहाँ पे ये 20 और ये 20 ले लेते हैं, ये बन जाएगा। और क्या इनमें 25 और 15 भी बना सकते हैं क्या? ये भी बना सकते हैं 25 और 15। इनफैक्ट ठीक है और इस वाले केस में भी 35 बनाने का मतलब 35 अगर इधर है तो आई कैन हैव 25 एंड 15 एंड 20 एंड 20। यार ये दोनों पॉसिबल है। तो मतलब दिस इज़ पॉसिबली ट्रू। ये तो यार बहुत सारे केसेस में बन रहा है। ठीक है, देखना क्योंकि क्या है कि यहाँ पे आपके पास 3 25 है, 1 25 आपने यूज़ कर लिया है, तो यू कैन हैव द रिमेनिंग 25 ना। तो यहाँ पे देखो 2 केसेस दिख रहा है, 25 एंड 15 व्हिच इज़ काफ़ी है और आई कैन टेक 25 और 15 ऊपर से भी, ठीक है? अच्छा और द अदर केस कुड बी 20 एंड 20। मतलब ये इधर और में उल्टा लिखा हुआ है। ऐसा ले लो कि अगर ये इधर आ जाएगा तो वो उधर चला जाएगा ऐसा। इन अ वे तुम समझिए ना, ऐसा ये तो मतलब ये वाला नंबर यहाँ पे तो दिख रहा है, इधर चेक करता हूँ फटाफट। बिकॉज़ इधर टाइम मत वेस्ट करो। ये तो दिख रहा है ना कि ये तो केस 1 में तो इट इज़ ट्रू। केस नंबर 2 पे फटाफट आते हैं। 35 बचा है और अपने को क्या-क्या बनाना बचा था? 75 बनाना था ना, तो 35 में 40 और 40 और कितना बच रहा है अपने पास? 40 और इधर बच गया 45। 40 बनाना है तो कैसे बनेगा? इन दोनों पे 25 और 15 दैट इज़ द ओनली वे और 20 और 20 और इधर 45 बनाना है तो कैसे बनेगा? 25 और 20 भी आ सकता है, 20 और 25 नहीं आ सकता, 15 और 30 नहीं आ सकता। तो यहाँ पे तो एक ही पॉसिबिलिटी बन रही थी इस वाले के साथ 20 और 25 वाली। लेकिन 20 तो यहाँ जा चुका है, तो अपने को बनाना पड़ेगा अच्छा अपने को तो वैसे भी यहाँ पे 15 लेना था, ठीक है? 25 एंड 15 बन गया और ये 45 है। 45 में कितना रह गया अपने पास?
20 और 25 भी ले सकते हैं। 25 और 20 या 20 और 25 यार दोनों ही बना सकते हैं। 20 और 25, 25 और 20 यार ये मेरा एकदम पॉसिबल दिख रहा है। अब है क्या, ये क्वेश्चन पेपर वाले फेज में एकदम करने लायक नहीं है। मतलब आई वुड रेट दिस एज़ सी प्लस कैटेगरी से क्वेश्चन। क्योंकि इतना जो मैं आराम से तुम्हें बताते जा रहा हूँ कहानी पेपर वाले फेज में ना दिमाग क्लिक करेगा और एक आध केस पहले ही तुम -1 लेके जा चुके होंगे। बेस्ट आइडिया क्या होता है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया होता 5 मिनट में 6 नंबर लेके निकल गए होते। या तो बाकी सेट बर्बाद होते तो इसमें दिमाग लगा रहे होते। अब हो सकता है कि बाकी सेट और आसान हो तो वहाँ से मैं दिमाग लगा सकता था। ठीक है? सो आंसर क्या मिला 75 हैज़ टू बी द राइट आंसर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 वाज़ ट्रिकी इसका सॉल्यूशन अगर हो तो दोबारा भी देख लेना। ठीक? नाउ लेट्स जंप टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है भव्या इसको ऐसा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं भव्या स्कॉलरशिप इज़ 80। ठीक है? चलो इसके लिए अपन ना वो बना ही लेते हैं। भव्या का जो स्कॉलरशिप स्कोर है वो है 80। ठीक? एंड इसका स्कोर है 75। ठीक? अच्छा, भव्या का स्कॉलरशिप स्कोर कैसे बना होगा? इसका स्कॉलरशिप स्कोर कैसे बना होगा? ये दिमाग लगा सकते हैं। ठीक है? और क्या कर सकते हैं? अब ये समझना ना भव्या का स्कॉलरशिप स्कोर और जब देव का स्कॉलरशिप स्कोर आया, यानी कि ये 35, 35 और 30 जा चुका है। तभी आया होगा, है कि नहीं? बिकॉज़ यही है गुड वाले, तो हमारे ये तो जा चुके हैं। ठीक है? मतलब उसमें से अगर मान लो ये 30 है, 30 बनाने के लिए मेरे को क्या मिला होगा? अगर लेट्स से यहाँ पे 30 है, बिकॉज़ इसमें से कोई एक तो 30 लिया होगा ना, या तो ये 30 है या तो ये 30 है। अगर ये 30 लिया होगा, तो 50 बनाने के लिए मैंने क्या किया होगा? 25 और 15 नहीं 20-30 नहीं। तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि यार ये जो 80 वाला है, ये बना होगा किसकी हेल्प से? 30 30 वाले की हेल्प से नहीं बनेगा। देखो फिर से देख लेते हैं। अ, रुकना, मेरे को क्या बनाना था? 80 बनाना था ना? 80 बना होगा 35 की हेल्प से बना होगा। इनमें से कोई एक तो बना ही ना 35 की हेल्प से। 35 की हेल्प से बना होगा यानी कि पीछे कितना रह गया होगा? या तो रह गया होगा 40 बनाना या तो 45 बनाना। 40 बनाने के लिए 20 और 20 वाज़ देयर। ठीक है, 25 एंड 15 वाज़ आल्सो देयर और 45 बनाने के लिए 45 बनाने के लिए 25 और 20 वाज़ देयर। तो भाई दोनों ही पॉसिबल है बना पाना। ठीक है। अच्छा 75 पे इस पे चेक कर लेते हैं, ये 30 वाले पे। 30 वाले पे 30 वाले पे 30 वाले पे 80 और 75। 35 के साथ क्या बन रहा था अपना? एक कॉम्बिनेशन था 35, 20 एंड 20, 35, 20 एंड 25। तो यार बहुत सारे पॉसिबिलिटी हैं देखना। 35, 20 और 25 ले लूँ, ऐसा, ठीक है? और कुछ-कुछ ऐसा। अब अपने को पूछा क्या एग्ज़ैक्टली उस पे चलते हैं। बिकॉज़ अगर इस चीज़ में उलझे तो फिर यार ये कहानी फँस जाएगी, है ना? तो अब अपने को बोला हुआ है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट हू कैन स्कोर अ स्कॉलरशिप ऑफ 65। ऐसे कितने लोग हैं जो 65 स्कोर कर सकते हैं, ठीक है? अब अगर इसको सॉल्व करने के ना 2-3 तरीके, एक तो जुगाड़ ये है कि तुमको ये नंबर्स दिए हुए हैं, इनका टोटल मार लो, ठीक है? इनका टोटल मार लो, तुमको 5 लोगों का स्कोर दिया हुआ है। 1, 2, 3, 4, 5 और उसमें एडजस्ट करके देख लो कि 65, 65, 65 कितने लोगों के आ सकते हैं। मतलब इनका जब टोटल करोगे तो कितना बनेगा? इनका टोटल बन जाएगा ए का 45, 45 और 60 और 50 और 80 और 35। ऐसा टोटल करना पड़ेगा तुम्हें, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ठीक है? थोड़ा इधर 65 पे दिमाग लगाते हैं ना, वो ज़्यादा बेटर आइडिया होगा, ठीक है? देखो अपने को ये नंबर अगर मिल जाएगा ना तो मेरा काम हो जाएगा। ये नंबर निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? 80 80 को कैसे ले सकते हैं?
80 को या तो मैं मान लेता हूँ, ऐसा ले लेता हूँ कि भाई इसमें टॉपर ले लेता हूँ 35 वाले के साथ, ठीक? और या तो इधर बना लेता हूँ टॉपर, अगर ये टॉपर होता, ठीक है? अगर ये टॉपर होता मतलब पीछे कितना बच गया मेरे को बनाना 80 के बाद 35 और 45 बच गया बनाना, जिसको कि मैं यहाँ से बना सकता था 20 और 25 वाले केस से, ठीक है? 25 और 20 वाले केस से, ठीक? अच्छा, उस केस में मेरे को ये वाला लेना होता, ध्यान देना ना। ऐसा क्योंकि मैं 20 वाला केस ये वाला नहीं ले सकता था बिकॉज़ 20 मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया। तो यानी कि उस केस में ऐसा होता है कि बी को टॉपर, ई को टॉपर यहाँ मिला यानी कि डी को टॉपर यहाँ मिला होगा, ठीक है? 35 पे पीछे क्या बच गया 40 बनाना, 40 कैसे बना होगा? 20 और 15 यूज़ करके, ठीक? अच्छा, बहुत ज़्यादा रायता फैलते जा रहा है बट ठीक है। हमने ये केस बना लिए, ठीक है? अब मेरे को इतने एक केस से मिल सकता है क्या 65? 65 बनाने के लिए मेरे को क्या चाहिए? इधर से दिमाग लगाऊँ क्या? तो मेरे को साफ दिख रहा है यार 30 और 35 इज़ गॉन, ठीक है? चुपचाप इधर से दिमाग लगाते हैं। 35, 35, 35, 30 2 तो भाई जा चुका है, 20 जा चुका है, ठीक है? साफ दिख रहा है। 25 ये इतने हिस्से तो जा चुके हैं, है ना? कितने चले गए होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 9 नंबर्स आ चुके होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये तो जा चुके हैं और इनके अलावा भी कुछ-कुछ जा ही चुके होंगे। अब रिमेनिंग वाले में से अगर मैं लेता हूँ 15 तो मेरे को 25 और 25 के कॉम्बिनेशन के बना सकता हूँ 65, ठीक है? एक कॉम्बिनेशन और एक और कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ क्या? 15 25, 25 एक और बन सकता है। थोड़ा और चेक करूँगा तो मेरे को आंसर मिल जाएगा। क्योंकि देखो मेरे को यहाँ दिख रहा है कि यार मैक्सिमम मेरे को ना 2 मिल सकता है, 3 तो नहीं मिलेगा, ठीक है? 3 तो नहीं मिलेगा यहाँ पे साफ दिख रहा है। कैसे दिख रहा है ये देखो मैंने ना अभी इतने हिस्से से मेरे को ये दिख गया कि यार ये वैल्यूज़ बची हुई हैं। इन कॉम्बिनेशन में अगर मैं 15 लेता हूँ तो 65 बनाने के लिए 15, 25, 25, 15, 25, 25 ठीक है? थोड़ा और मेहनत करूँगा तो मेरे को और दिख जाएगा। अच्छा, चलो सम से भी ट्राई कर लेता हूँ, सम वाला लॉजिक भी देख लेता हूँ। सम वाला थोड़ा कैलकुलेटर फटाफट से यूज़ कर लेता हूँ, वो थोड़ा ईज़ी लॉजिक बन सकता है अपने को। अपने को ए का स्कोर कितना दिया हुआ है? मतलब एक कंपोनेंट का स्कोर कितना आ रहा है? 15, 45, 45 प्लस 60 ठीक है? प्लस 50 प्लस 30 प्लस 35 यानी कि 220 ठीक है? एल कंपोनेंट पे कितना आ रहा है? 10, 20, 30, 50, 50, 70, 70 और 70 प्लस 75 प्लस 35 यानी कि ये मेरा मिल गया 180 और सी कंपोनेंट पे कितना आ रहा है? 5, 30, 35, 35 और 60, 35 और 60 प्लस 50, 145 ठीक है? तीनों का सम कितना हो गया? 220 प्लस 180 प्लस 145 व्हिच इज़ कितना? 545 ऐसा? मतलब ये जो पूरी कहानी है ना, ये पूरी इसी पे चलनी चाहिए थी 545 पे, ऐसा? अब थोड़ा अगर ध्यान दो ना क्योंकि ऐसा ना यार कर रखा है मेरे को, तो मेरे को पता है कि मैं वहाँ से निकाल सकता था, ठीक है? 45 का मतलब मेरे को 5 का स्कोर दे रखा है, ए, बी, सी, डी और इसका। यानी कि मेरे को क्या पता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ज़ी इज़ इक्वल्स टू कितना? 85 प्लस 70 प्लस 75 प्लस 80 व्हिच इज़ 310 545 माइनस 310 तो मेरे को क्या बनाना बचा 235 कितने लोगों को 1 2 3 4 5 5 लोगों को मिला के बनाना है, ठीक है? अब मेरे को बोला कि क्या 65 को मिला सकता हूँ? देखो 65 अगर मैं पाँचों को देता हूँ, तो मेरा बन जाता है 325 व्हिच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है?
अगर मैं 65 4 लोगों को देता हूँ, 65 इंटू 4 260 वो भी नहीं बनेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आई कैन हैव 3 लोग, 2 लोग, 1 लोग, 0 लोग, ऐसा हो सकता है? ठीक है, अब ज़रा देखना अगर मैं 3 को देता हूँ, तो दिक्कत क्या है? थोड़ा इधर जगह बना लेते हैं बिकॉज़ ये वाला लॉजिक अपने को परेशान कर रहा था। ठीक है। यार ये लॉजिक तुम्हें मैंने बता दिया है समझने के लिए, केसेस बनाने के लिए बट पेपर वाले फेज़ में ये सेकंड लॉजिक वुड बी मोर बेनिफिशियल। ये आपका है ना कैट 17 का सेट है, वहाँ से उठाया हुआ लॉजिक है ये। कैट 17 में देयर इज़ हैप्पीनेस इंडेक्स वाला उसमें इसको ऐसे ही कैलकुलेट करना था। ठीक है, 545 235 है ना, तो 65 इंटू 3 लेता हूँ तो व्हिच इज़ 65 इंटू 3 इज़ 235 195। ठीक, पीछे मेरे को क्या बनाना पड़ेगा 40 और। यार देखो पंगा क्या है, मिनिमम 35 तो लेना ही पड़ेगा ना। यहाँ लिखा था ना पॉइंट में कि यही सबसे लोवेस्ट स्कॉलरशिप स्कोर है। मिनिमम मतलब 70 तो यार देना ही पड़ेगा, तो यार ये भी केस मेरा पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अब मेरे को साफ दिख रहा है कि यार 2 या 1 होगा, जो मैं वहीं पे पहुँच गया था जहाँ पे मैं फँसा था। क्योंकि मेरे को ना 2 और 1 अब या तो यार मैं सारे केसेस बनाता तो दिखता, तो मेरे को लगा कि यार यहाँ पे आ जाता हूँ। 2 और 1 में दिमाग लगाते हैं। 130 130 पे अगर मैं मिनिमम 35 3 बार ऐड भी करता हूँ, दैट बिकम्स 105 प्लस 130 245 हो जाता है। अगर मैं मिनिमम 35 भी ले लेता हूँ, तो भी लोचा है, साफ दिख रहा है। ये बन जाता है 105, ये बन जाता है 130, ये दोनों बन जाएगा कितना 245। तो यार ये भी पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, तो आंसर क्या होगा 1 होना चाहिए था। यहाँ पे तो 1 साफ-साफ दिख भी रहा था कि एक केस तो मेरे को साफ-साफ दिख रहा था कि बनेगा, बनेगा। खैर वो भी चेक कर लेते हैं। ऐसा तो नहीं 0 होगा, ऐसा तो नहीं 0 होगा, वो भी चेक कर लेते हैं। मतलब 1 बना के देख लेते हैं ना। और 0 में भी क्या होगा? 65 वेट सॉरी अगर 65 1 पे दे दिया, यानी कि क्या रह गया 235 माइनस 65 तो आई एम लेफ्ट विथ कितना 170। अगर मैं चारों को 35 भी दे देता हूँ, तो दैट बिकम्स 35 इंटू 4 140। सही है, सॉर्टेड है, वो तो मेरा बन जाएगा बड़े आराम से। तो 1 तो मेरे को दे सकता हूँ, साफ-साफ दिख रहा है, 1 तो दूँगा। 0 होगा क्या आंसर इसका ये भी सोचा जा सकता है, देन व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट ही कैन हैव 65 तो दिख रहा है। 0 तो खैर नहीं होगा, क्योंकि अगर ध्यान दो ना यहाँ पे तो यार साफ-साफ दिख रहा है कि ये जो 15 है इसमें से एक 25-25 के कॉम्बिनेशन पे आराम से बन जाएगा। ठीक है। अगेन आई वुड मतलब हाइली रिकमेंड कि इसमें से यार ये 2 क्वेश्चन ना 5 मिनट में करके निकले जा सकते थे और इन दोनों में उलझे थे तो फँस सकता था मेरा मामला। ठीक है। ओवरऑल मॉडरेट से डिफिकल्ट सेट मतलब इसका पहला 2 सुपर ईज़ी था, दूसरे 2 थोड़े ज़्यादा चैलेंजिंग थे। तो टफ सेट माना जाएगा। ठीक है। चलो कीप प्रैक्टिसिंग।